हेलो मेरे जोश वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फिजिक्स, accelerated physics. So welcome. If you're not subscribed to this channel, now is the time to do so, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत free information मिलती है, including the upcoming batches, upcoming free sessions, upcoming Olympiad exams, and free PYQs, free homework, lot of things. So Vedantu Olympiad School Beyond Books Brigade. So I'd subscribe to this channel if you're not already there. So I'm sure है ना, बोर्ड एग्जाम फोड़ने का जो इरादा है वो पक्का है, and you are right on track with the full जोश, full energy. And the problem there is कि स्कूल में थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है ना, ऑब्वियसली थोड़ा अपने स्केड्यूल से चलेगा, and there's no one to blame for it because they have to go by everybody in the class. But the point is, if you are planning to prepare for Olympiad exams or JEE NEET, then you have to accelerate your studies. And that's the purpose of bringing accelerated physics. So why accelerate physics? So that we can quickly finish the CBSE ka syllabus. And once we do that, we are ready to start preparing for Olympiad exams, JEE, NEET, any higher level exam. And that is why we are starting this. We have started this, है ना, ये series जो maths की start करी थी, अभी physics की है. So in a nutshell, what we do here is we have 4 chapters. तो एक चैप्टर एक सेशन में खत्म करेंगे, तो 4 चैप्टर के लिए 4 सेशंस कंप्लीट सिलेबस है ना, देन 2 एक्स्ट्रा फॉर PYQs. So it's free for all. There's no catch, no hidden terms and conditions कि भाई थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, बाकी के लिए फीस देकर आ जाओ. No, complete syllabus coverage of NCERT book and everything in syllabus. Now there will be theory, practice problems, PYQs, and the best of all, there is a homework. So before we finish this session today, on this Telegram channel, you will get a PDF of questions based off today's class. So that's the best part here. Now, today we are going to do PYQs of electricity and magnetism. So PYQs as in previous year questions, which have actually come in the board exams. So once you have cleared all your concepts, this is the time when you should be practicing those questions to get familiar with the board exam. So my name is Bhavdeep Sethi. I have done masters in technology from IIT Bombay. I have a passion to convert physics haters into physics lovers, and I have been doing it for a long time. मैं हमेशा कहता हूँ यार, फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगी. फिजिक्स को कंसेप्चुअली पढ़ना होता है, फिजिक्स को याद नहीं करना होता. डू यू एग्री? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स बेटा. Catastrophic, Priyanshu, everybody, all the regular students, Nilu, and so give me a thumbs up here, everybody. I love you all, and I can see the josh and energy. So let's get started. So this was our schedule, where we first of all started with reflection of light, refraction, then we did PYQ marathon of optics, then we did electricity, and then on Wednesday we did magnetism, and right now today we are doing the PYQs of electromagnetism. So students, participate in the questions today, and this actually completes your entire physics का syllabus. Board में जितना भी आना है, जितने topics आने हैं, once we finish our class today, you are well prepared for physics portion of it. And then we are parallelly running the maths का accelerated maths, and we'll be working on those. So आज हमारा physics complete. Congratulations. So before I start the class, take a pledge. What is that pledge? With this cross, you have to cross your hands and say, I pledge to never memorize physics and maths. Physics और maths को अगर आप याद करने वाले हो, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि physics और maths, and not just these two subjects, any subject for that matter, have to be understood conceptually. So take a pledge. और अगर आप ये pledge लेने में hesitate कर रहे हो या आपको मुश्किल हो रही है, तो आज की क्लास आपके लिए मुश्किल होने वाली है. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये प्लेज लेने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आज की क्लास मुश्किल होगी, बोरिंग होगी आपके लिए. आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव, आई एम जस्ट सेइंग यू स्टे हियर, बट यू विल फाइंड इट चैलेंजिंग. पर अगर आप इस प्लेज को ले लेते हो, तो आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, सब समझ में आएगा. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 1 and 2 मार्क के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए थे. सो ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट consisting of a cell of 1.5 volts, 10 ohm resistor and 15 ohm resistor, and a plug key, all connected in series. CBSE 2011 के पेपर में, I think this was a 2-mark question. So let's get started here. So they are saying there is a battery, cell battery. एक होगा तो cell, अनेक होगी तो battery. So let's draw one cell.
and this is 1.5 volts. Then they're saying connect 10 ohms resistor and 15 ohm resistor and a plug key. Now, remember, plug key as in a switch is always connected to the positive terminal, and it's a good idea to mark this positive and negative. Now, this is one of the most commonly made mistakes here. Students do not write this plus and minus. So when we do PYQs today, we will also be covering some of the most commonly made mistakes by your seniors जिन्होंने एग्जाम में किया था, हमें बताया जिन्होंने ये प्लस माइनस लिखना जरूरी है. Second mistake is many students make the plug key here. Don't do that. You have to make it on the positive terminal. Now you connect 10 ohms and 15 ohm resistors in series. Good. And that completes your answer. Does it? Is this complete? No, you have not labeled it. So you have to tell one of them is 10 ohms. You write 10 ohms. You write 15 ohms. And then you write 1.5 volts. And that this is your complete circuit. That's your circuit. Now, since this battery is off, the switch is off, so there is no current flowing right now. Okay, let's go to the next question. It says a wire of resistance 5 ohms is bent in the form of a closed circle. क्या किया भाई? कुछ नहीं किया. एक सिंपल सा केस है कि भाई मेरे पास एक वायर है, एक वायर ले लेता हूँ, यहाँ पर फोन का चार्जर निकालता हूँ, तो एक वायर है, वायर को एक सर्कल बना दिया. आगे क्या बोलते हैं? व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर. डायमीटर मतलब ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर. तो यहां से यहां तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम हियर. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल हियर. सो सर्कल भाई आप कहाँ हैं? सर्कल भाई कहते हैं हम यहाँ हैं. सो दिस इज अ सर्कल. सो दे आर सेइंग दिस इज अ वायर. और जो वायर था वो 5 ohms का था. Wire was 5 ohms. So now they're saying across the two ends. So basically maybe the current is going like this and coming out here. Now what's the resistance? देखिए, resistance is equal to rho L by A, है ना. ये तो बच्चा बच्चा जानता है. तो अगर आप यहां से यहां तक का पार्ट देखोगे तो डोंट यू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज these are two resistors in parallel, isn't it? यहां से करंट आया, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, there's a choice. So this is one resistor, this is another resistor. So how much is this? अगर पूरा 10 था तो आधा 5 होगा, पूरा 100 था तो आधा 50 होगा, बट पूरा 5 था तो पूरा 5 ohms था तो उसका आधा 2.5 होगा, isn't it? Think this way also. इसकी लेंथ पूरी लेंथ की आधी है, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर वाला 2.5 है. सो दिस इज 5/2. आई कैन से 5/2. And this is also 5/2. So there are two resistors which are connected in parallel here. What is the net resistance? We know the net resistance will be given by 1 by R is equal to 1 by R1, which is 1 by 5/2. I'll write all the steps here. This is how you have to show in the exam. This is a board exam. So board exam में every step के marks होते हैं. Now this 1 over 5/2 becomes 2 by 5. So this becomes 1 by R is equal to 2 by 5 plus 2 by 5. Now 2 by 5 plus 2 by 5 gives you 4 by 5. So 1 by R is equal to 4 by 5. But 1 by R थोड़ी चाहिए, मेरे को तो R चाहिए, है ना. So R is equal to 5 by 4, which is same as saying 1.25. Now this is the most common mistake made by students. They finish से हो गया, हो नहीं गया भाई, जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे नहीं हुआ. So throughout today's session, I'm also going to cover जो most commonly made mistakes होती है. I don't want you to make them. आपके senior दीदी भैया ने make करी थी those mistakes. I don't want you to make. So this is how you will draw the circuit diagram. You start by writing this step, 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 step. Finally, you write the answer is 1.25 ohms. This was, I think, 2 mark question. Yes, 2 mark question in 2005 का question paper. अगला सवाल. The amount of charge passing through a cell in 4 seconds is 12 coulombs. Find the current supplied by cell. This is CBSE 2016 एक नंबर का क्वेश्चन था. ये एक नंबर का तो सिंपली सोल्यूशन होगा. आप देखिए इसमें दिया क्या है, पूछे क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज. तो यहाँ Q दिया हुआ है.
पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड, सो टाइम भी दिया है, टाइम दिया है, और नहीं नहीं है ना, चार्ज ये दिया, सॉरी, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, लेट्स राइट विद येलो आल्सो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज द कलर हियर. सो अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पर क्यू लिखना चाहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो. दिस इज क्यू एंड दिस इज टाइम इज 4 सेकंड्स दिया. पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, आई पूछा है. तो आप तीन वेरिएबल्स की हम बात करो, आई, क्यू एंड टी. So what is the relationship between those three? I mean, obviously the definition of current is the current is the amount of charge flowing per unit time. So what you will say is I is equal to Q by T. Q is given as 12 coulombs, SI units and no conversion needed, divided by time. Time is 4 seconds. So you'll say the current flowing is 3 coulombs per second. Technically this answer is right क्योंकि coulombs per second, meters per second, that's something like per second कितना हो रहा है, but as a convention this this coulomb per second is called amperes, so you have to write 3 amperes. Now on purpose I have made a slight mistake here, जानबूझकर करी आपसे पूछने के लिए क्या गलती कर गया हूं मैं, एक छोटी सी गलती करी है जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं. पॉइंट आउट माय मिस्टेक. यस, नीलू, प्रियांशु, सब नाम जो मुझे दिख रहे होंगे कैटास्ट्रोफिक्स, प्लीज टेल मी कि यस, सी छोटा लिखा है मैंने जान के आपको दिखाने के लिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. भाई कूलम नाम है किसी का यार, अगर वो नाम है तो उसकी इज्जत बनती है यार, उसको बड़ा सी लिखना पड़ेगा आपको. यू रियली हैव टू राइट एन अपर केस सी फॉर कूलम, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. यू हैव टू रियली राइट कैपिटल सी. एस छोटा रहेगा क्योंकि सेकेंड्स है, वो नाम नहीं है. इसी तरह जब आप एम्पियर लिखोगे 3A, this is your final answer. Do not make the mistake of not writing A or writing it in lower case. दोनों केस में आपके मार्क्स कटेंगे. 2015 का क्वेश्चन पेपर, 2016 का सॉरी, है ना. So what is the resistor of an ideal voltmeter? इस चीज को काफी स्टूडेंट्स याद करते हैं. भाई याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, याद नहीं करना. आप सोचो वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, वैसे सोचो. मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप बिना याद करे करोगे. 2014 2014 के पेपर में 1 मार्क का था. या आंसर आई कैन टेल यू, इट्स इनफाइनाइट, बट आई डू वांट यू टू लर्न. याद कैसे याद करते घूम घूम के भाई, एमीटर का 0, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट, फिर सब गोच पोच हो जाता है. तो आप इस तरह से समझो इसको कि अगर आपके पास कोई सर्किट है ना, सर्किट चल रहा है, बड़ी मस्ती में चल रहा है, बढ़िया सब चल रहा है, सब सब बढ़िया, एक स्विच है ना, सेल है, ये चल रहा है. मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है ना. फिर मेरे मन में आया कि यार इसको मेजरमेंट्स करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लाकर एक एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो इसके पैरेलल में करेंगे, वोल्ट मीटर पैरेलल में करेंगे. अब मैंने वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर. अब आप सोचिए अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो जब करंट यहाँ आएगा, डोंट यू थिंक रेजिस्टेंस यहाँ है, कम रेजिस्टेंस होगा तो सारे ऊपर से निकल जाएंगे, है ना. यहाँ पे कोई रोड थी गड्ढे वाली, जिगजैग, स्पीड बम्प्स थे वहां पे, स्पीड ब्रेकर्स. सो यहाँ की स्मूथ रोड आप लगा दोगे तो ज्यादातर गाड़ियां वहां से निकल जाएंगी. एंड सेम थिंग विल हैपन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन ने कहा ऊपर से जाऊं कि नीचे से जाऊं, उसने कहा भाई ऊपर बढ़िया रोड है, ऊपर से निकल जाता हूं. तो अगर इसका रेजिस्टेंस आप कम रखोगे तो डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू दैट एंड द एंटायर सर्किट इज ऑल्टर्ड नाउ. वो थोड़ी आप चाह रहे हो यार. इसलिए क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. रेजिस्टेंस फॉर दिस लॉजिक आई एम टेलिंग, याद तो यार फिर तोते भी कर लेते हैं ना यार. तो आप समझो इस बात को कि अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा और पैरेलल में लगाना है उसको, तो सब करंट उधर जाएगा. मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जैसा था वैसा चलता रहे, बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से जाए जिससे कि मैं मेजरमेंट कर पाऊं. So I would like voltmeter to have a very high resistance, ideally infinite. Infinite possible ही नहीं, और infinite होगा तो कोई वहां से जाएगा ही नहीं, फिर तो हो ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं चलेगा. But since they are saying ideal, you should say infinite or very very large. Now similarly talk about emitter. Emitter को क्या आप करोगे, आप अब emitter को यहाँ पर ऐसे लगाओगे ना, ऐसे लगाओगे emitter को. अगर आपने यहाँ emitter लगा दिया, सपोज इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो अब तो करंट ही कम हो जाएगा ना. आप नहीं चाहते, आप चाहते हो सर्किट को फर्क ना पड़े, एज इफ यहाँ कोई था ही नहीं. सो आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी 0, पता ही ना चले कि भैया एमीटर लगाया, तो आइडियली इट शुड बी 0, प्रैक्टिकली जितना कम हो सके.
इसका आइडियली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली जितना ज्यादा हो सके। दिस इज हाउ यू शुड बी लर्निंग फिजिक्स। नहीं तो घूम घूम कर याद कर लेते हो एमीटर का, ए वोल्ट मीटर का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना यार। फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी लिख देना बाद में जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो 3 VI ग्राफ्स आर ड्रॉन इंडिविजुअली। ये क्वेश्चन मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये एक सिचुएशन बेस्ड है। इसको रट्टा मार के तो आप कभी नहीं कर सकते। तो क्या लिखा है, थ्री द VI ग्राफ्स आर ड्रॉन इंडिविजुअली फॉर टू रेजिस्टर्स एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। सो ए बी सी है, 3 ग्राफ बने, इनमें से 2 तो रेजिस्टर है, तीसरा उसका सीरीज कॉम्बिनेशन है। So out of A, B and C, which one represent the graph or series combination of the other two? मतलब कौन सा वाला है जो ऐड करके बनाया गया। तो अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स ने याद करते हैं कि इसका स्लोप लेना है कि 1/, स्लोप लेना है। एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं आपको। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सपोज मैंने एक बैटरी लगा दी और रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम होगा कि ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा फॉर अ गिवन बैटरी। एक चीज तो आप ये समझ लो। दूसरा आप ये समझ लो कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे आपने 3 और 6 को कनेक्ट किया तो 9 हो गया, है ना। 3 से भी ज्यादा, 6 से भी ज्यादा, 9। पर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 3 और 6 2 बन जाता है, मतलब वो 3 से भी कम हो गया। आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का की है, मतलब इसका मेन पार्ट ये है। अगर मैंने 3 और 6 को सीरीज में लगा दिया तो टोटल 9 बनता है। पर अगर मैंने 3 और 6 को, आप करके देख लो, 3 और 6 को 1/r, वो सब जो फॉर्मूला लगाते हो उससे करोगे तो टोटल इसका 2 आता है। मतलब सीरीज में जो आंसर आएगा सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा, जो आउट ऑफ दोस टू थे उनसे बड़े से बड़ा आएगा। और पैरेलल में जो सबसे छोटा था उससे भी कम आएगा, है ना। 2 आ गया, 3 से भी कम आ गया। तो अब यहाँ सीरीज की बात हो रही है, मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, अगर मेरे पास 3 नंबर आ गए, जो सबसे ज्यादा नंबर है वही तो आंसर है उन बाकी दो का, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस है, समझ नहीं आता भाई इसको लूं ज्यादा कि इसको लूं। सिंपल तरीका है, आप एक बैटरी फिक्स कर लो। ठीक है, बैटरी फिक्स कर लेते हैं। तो बैटरी कैसे फिक्स करी मैंने, ये वोल्टेज है, करंट है, तो वोल्टेज एक ले लो पर्टिकुलर। तो उसी वोल्टेज पर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। एक मिनट और ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे जाता हूं, यहां पे ले लेता हूं जिससे पता चलेगा। तो यहां पे ले लिया मैंने, अब यहां पे लिया और एक लाइन खींची मैंने। इसी वोल्टेज पर इस ग्राफ में करंट इतना है, इतना करंट है, इसमें इतना करंट है, इसमें इतना करंट है। सो डोंट यू थिंक ये जो सी दिख रहा है आपको, सी में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए ना उसी सेम वोल्टेज के लिए इसमें करंट कितना है, इसमें करंट इतना है, इतना ही तो है, रीडिंग इतनी, ये करंट की एक्सेस है ना। और इस वाले का इतना है, इस वाले का, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हो, तो ये जो C है, दिस C इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अदर टू, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस कंसेप्चुअली। बाकी लिखना है आपको एग्जाम में, ये थोड़ी आप बताओगे ये सब। यू हैव टू राइट द स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स इन योर ओन वर्ड्स। याद नहीं करो उसको यार। एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, एवरीबडी हैज टू हैव यूनिक आंसर्स। Now, the nature of magnetic field lines passing through center of current carrying circular loop, circular loop, अरे circular loop, जैसे ये circular loop है ना, इसमें करंट फ्लो कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो अंदर जाएंगी या बाहर आएंगी। अब वो कह रहे हैं उसके सेंटर पे, मिड पॉइंट पे, सेंटर पे क्या होता है बिहेवियर। बताइए चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, मतलब चैट बॉक्स में बताइए, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दे इसका आंसर, सो दैट आई नो दैट यू वर एक्टिवली, है ना, वर्किंग ऑन दीज क्वेश्चंस। सो क्या आंसर होगा इसका? यस डेफिनेटली इट विल बी स्ट्रेट लाइंस। सेंटर पे स्ट्रेट लाइंस होगी। अगर आप सर्कुलर लूप के लाइंस बनाओगे, सो दे विल बी गोइंग इन हियर, गोइंग इन हियर, बट एट द सेंटर they will be going directly straight through the loop at the center is the key here, right? चलिए, so which of the following is the attract, is or are, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरी साइड से, आई एम रियली सॉरी। इसको फिक्स कर देते हैं। जब भी मैं सेशन लेता हूँ और कोई टाइपिंग मिस्टेक दिखती है तो मैं ऑन द स्पॉट उसको फिक्स कर ही देता हूँ। इज स्लैश आर, ये मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाता हूँ उसको खुद, है ना। दिस इज योर फ्रेंड, इसमें टाइप करता हूँ तो हाँ। तो चलिए,
तो गलती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर, मतलब इसमें आप एक से ज्यादा चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये सीबीएसई के एग्जाम में इस पैटर्न में नहीं आता, बट उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फॉर्मेट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, मतलब एक भी सही हो सकता है, ज्यादा भी, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपको टर्म पता होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक, ferromagnetic substance. Again, you will read more about it in your 12th grade, but for now you should know this term ferromagnetic. क्या क्या होता है ferromagnetic? Iron, cobalt, nickel, ये तीन जो elements हैं, these are ferromagnetic. They can be used to make magnets. They are attracted by magnets. So steel, which is a form of iron, cobalt or nickel, these are the three. ब्रास नहीं, ब्रास इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी गो टू 3 मार्क क्वेश्चन। सो फार वी वर डूइंग 1 and 2 मार्क क्वेश्चंस। अभी 3 मार्क क्वेश्चन की कैटेगरी में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर सेज 2017 का क्वेश्चन है, शो, एंड दिस इज 3 मार्क्स के लिए, थोड़ा सा लेंथी था ये। सो पर्सनली आई थॉट कि भाई बच्चों को टाइम इसमें सोचने में लगेगा, बनाने में लगेगा, बट बोर्ड ने 3 मार्क्स के लिए दिया था। So show how would you join 3 resistors, each of resistance 9 ohms. So 9 ohms के 3 resistor आपको पकड़ा दिए. So that the equivalent resistance of the combination is first 13.5 ohms and second is 6 ohms. So आपको 6 ohms के resistor पकड़ा दिए, 9 ohms के 3, है ना? तो इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है बेसिकली। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये दिखता जाएगा। मुझे आंसर दिख रहा है इसमें 13.5। 13.5 मेरे को लग रहा है 9 से कैसे रिलेटेड है वो। 13.5 इज 9 प्लस 4.5, तो एक 9 का उठा लूं, एक 4.5 का चाहिए। अच्छा 9 को पैरेलल में जोड़ दो। ऐसे आप इस तरह से थॉट प्रोसेस चलाओगे। कैसे, मैं बताता हूं। ये जो तीन दिए उनका इससे रिलेशन देखो क्या हो रहा है ना? देखने में इसका 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स, एज इन एक पूरा 9 और एक आधा 9। आधा 9 तो नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास अगर एक 9 है वो तो मैंने लगा दिया 9 ohms का, बट मुझे 4.5 चाहिए। अब उसको काटना अलाउड नहीं है, काटना नहीं अलाउड, पर आपको पता है कि अगर आप पैरेलल में करोगे तो आधा हो जाएगा ना। इफ दिस इज 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9, तो अगर आप इसका 1/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/r करोगे, देखो करके देखिए आप, तो 1/r इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 विच इज 2/9, है ना। 1/9 प्लस 1/9 तो 2/9 है, तो r कितना हो गया? r हो गया 4.5 विच इज 9/2 विच इज 4.5। तो बेसिकली ये जो है ये 4.5 हो गया, और ये 4.5 हो गया, 9 हो गया, अरे 13.5 हो गया। इस तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आंसर दिखता जाएगा, दिखता जाएगा। सिमिलरली अब 6 ohms की बात हो रही है। 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms तो 9 से भी कम है ना। आप इस तरह से सोचो, 6 ohms तो 9 से भी कम है, तो क्या करूं फिर मैं? मतलब मुझे 9 जो है अकेला नहीं लगा सकता, क्योंकि अकेला लगाऊंगा तो जो भी सीरीज में आएगा वो 9 से बड़ा होगा। अब इस तरह से थॉट प्रोसेस लगाओ। मुझे आंसर 9 से भी कम चाहिए, तो मतलब ये लग रहा है मुझे कुछ ऐसा सोचिए हैं कि अगर मैंने ये 9 कर दिया, है ना, ये 9 कर दिया, और मैंने, है ना, ये 9, ये 9 कर दिया, ये 9 कर दिया, है ना, तो कितना हो गया? आप ये देखो, ये अब 18 हो गया, 9 हो गया, तो मैं क्या करूंगा? 1/r इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9, है ना। फिर अब इसका एलसीएम लूंगा 18, दिस इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/r। तो 1/r इज कमिंग आउट टू बी 3/18। मिल गया, देखिए आंसर मिल गया। 18/3 is 6, and this is how you do. There's no trial and error, there's a clear vision here. So many times many teachers and students say इस तरह के क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर से होते हैं। नहीं, ट्रायल एंड एरर से करते हैं स्टूडेंट्स, आई एग्री, बट अगर आप ओलंपियाड की बात कर रहे हो, प्रिपरेशन की, जेडब्ल्यू की, नीट की, आपको विजन दिख जाएगा, आपको क्वेश्चन में आंसर दिख जाएगा। आप देखोगे 6 चाहिए तो 9 अकेला नहीं लगा सकता, 9 के पैरेलल में ही कुछ लगाऊंगा। तो फिर आप देखोगे 9 के पैरेलल में अगर मैं 9 लगाता हूं तो वो तो मुझे 4.5 मिल रहा था, उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए यार। then you will plug in another one here, and this is how you will do systematically. आपको ट्रायल एंड एरर, 100% ट्रायल एंड एरर नहीं करना आपने, है ना, उसका थोड़ा सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी यूज करनी है।
Very beautiful question coming up here. A piece of wire of resistance 6 ohms is connected to battery of 12 volts. ठीक है, easy question है by the way, 3 मार्क का बनता नहीं है, पिछला वाला बल्कि बनता था. So find the amount of current flowing through it. ठीक है, इसको तो आप बना लीजिए डायग्राम. So piece of wire, तो आप बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, पर क्योंकि 3 मार्क्स का तो बना लो तो बेटर है. तो ये 6 ohms है और इसमें आपने 12 वोल्ट का बैटरी ऐसे लगा दी, 12 वोल्ट की बैटरी है ना. तो अब करंट कितना होगा ये पूछ रहे हैं. करंट इज V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V बाय आर. सो आप बोलोगे भाई 2 एम्पियर्स. एम्पियर लिखना है, A बड़ा लिखना है ना. या तो एम्पियर लिख रहे हो तो A छोटा आएगा ये. अच्छा, एक और गलती करते हैं स्टूडेंट्स, एम्पियर अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो फिर A छोटा आएगा, पर अगर एब्रीविएशन कर रहे हो, A लिख रहे हो तो A बड़ा आएगा, है ना. Now the same wire, this wire is redrawn by stretching it. उसको लंबा कर दिया. हाँ, अब 3 मार्क का लग रहा है, अभी नहीं लग रहा था, अब लग रहा है. Is redrawn by stretching it to double its length. Find the resistance of the new redrawn wire. एक काम करते हैं, ये खत्म कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जब जगह चाहिए मुझे ना. इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स काफी, कि R इज इक्वल टू रो L बाय A. वो सोचते हैं भाई डबल लेंथ कर दी, डबल लेंथ कर दी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा. नहीं, डबल नहीं हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा. आप सोचिए, अगर आपके पास एक वायर है, ये वायर है, इसकी कुछ लेंथ है L और एरिया है A, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज लेंथ टाइम्स एरिया, है ना. वॉल्यूम इज लेंथ टाइम्स एरिया. आप खुद सोचो ना, अगर सिलेंडर की आप बात करते हो तो पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट, है ना. ओलंपियाड की तैयारी करो भाई, सिंपल चीजें हैं तो, कि है ना, अगर आप देखोगे पाई आर स्क्वायर टाइम्स, इसी तरह आप प्रिज्म की बात करो, कोई भी प्रिज्म ले लो, है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म ले लो, तो बेस एरिया टाइम्स हाइट. तो वॉल्यूम तो उतनी है ना. वायर को आपने लंबा किया तो उसमें और मटेरियल थोड़ी भर दिया आपने. तो अगर आप खुद ही सोचो, अगर आपने इसको थोड़ा स्पेस देकर अगर मैं लिखूं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स एरिया, तो अगर आपने वॉल्यूम को डबल कर, लेंथ को डबल कर दिया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी. ऐसे तो ऐसे थोड़ी होता है. अगर लेंथ को डबल किया तो एरिया हाफ हो जाएगा. लेंथ को 3 टाइम्स करोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा. लेंथ को 50 टाइम्स करोगे एरिया 1/50 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी है ना उसकी. तो जब आप वायर को लंबा करोगे तो वो पतली हो जाएगी. तो आपने अगर वायर को लंबा किया, 12 कर दिया, एरिया A/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. बस वही तो की है इसकी. तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेंथ डबल कर दी, 2 टाइम्स कर दी, एरिया हाफ कर दिया, तो ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा ना, क्योंकि लेंथ डबल करी, एरिया हाफ करा, A/2 कर रहा है, तो 2 ऊपर जाके 4 टाइम्स हो गया. 4 टाइम्स मतलब 24 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा ये. 24 ओम्स, 12 का नहीं होगा, 24 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा ये. सो इस तरह के क्वेश्चंस में छोटी छोटी गलतियां ना करें. चलिए, assertion. Oh wow, प्लीज रीड द क्वेश्चन. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. assertion रीजनिंग मुझे फेवरेट है, मेरे को अच्छे लगते हैं. सो व्हेन a magnet needle is placed near a current carrying conductor, it gets deflected. तो पहले तो देखिए ट्रू है कि फॉल्स है. अब मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड. बिल्कुल ट्रू है यार. यही तो ऑयरस्टेड की एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, और उस एक्सीडेंटल डिस्कवरी के कारण ही वी आर लिविंग अ लाइफ विच इज possible in the sense, possible तो पहले भी थी, but all these gadgets that are around us and anything you look around you, it's because of that, है ना, accidental discovery. तो ये तो true है. Now reason, when an electric current passes through a conductor, the magnetic field is produced around it. अरे ये भी true है. तो अब क्योंकि ये ट्रू है इसलिए वो ट्रू है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, वो कह रहा है कि जब आप इन्हें मैग्नेट ली और उसके पास करंट कैरिंग वायर रखी तो मैग्नेट नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है. और सेकंड कह रहा है, ये क्या हुआ भाई? हाँ. सो सेकंड क्या कह रहा है कि भाई जब आप वायर के में करंट पास करते हो वो मैग्नेट बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है. हाँ, इसीलिए तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही है. वो भी ट्रू है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फर्स्ट वाला ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अगेन assertion रीजनिंग, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे दोनों. So assertion, if we place any conductor in a magnetic field, it will experience a force. If we place any conductor in a magnetic field, it will experience a force.
अच्छा बताइए भाई, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बोलिए बोलिए, चैट में लिखिए। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, so that I know मतलब how much you participate during watching these sessions, so that I can make them more interactive also and bring more videos. So if we place any conductor, ये any word ने काम खराब कर दिया यहाँ पे, any थोड़ी होता है। अभी देखे ना, ferromagnetic, it has to be either iron or cobalt or nickel. Any conductor, no, false, चल झूठा, है ना, this is false. So if we place any conductor in magnetic, it will experience a force. नहीं, this is wrong. तो अगर वो रॉन्ग है तो आंसर आ ही गया ना, फिर ए इज फॉल्स का तो एक ही होता है। ये सी और डी की चॉइस बहुत इजी होती है, ए और बी चॉइस में कंफ्यूजन होता है, सी और डी तो वैसे ही सिंपल होता है। बट एनीवेज वी लुक फर्दर जस्ट टू लर्न, बिकॉज वी आर लर्निंग राइट नाउ। एग्जाम में तो जैसे ही फॉल्स आ गया आपने चूज कर लिया डी, खत्म का। बट देखते हैं, Fleming's left-hand rule can determine the direction of the force acting on a current-carrying conductor placed in a magnetic field. हाँ, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। This is true. We should know because हम पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। बट एग्जाम में जैसे ही पहला फॉल्स आएगा, डी हो गया। एग्जाम में ये फॉल्स आएगा तो सी हो गया, है ना। सी और डी इज द क्लियर चॉइस। 5 मार्क क्वेश्चन, बिजली का बिल आएगा भाई, 5 मार्क क्वेश्चन की, है ना। जैसे बिजली का बिल भारी भरकम आता है, वैसे 5 मार्क क्वेश्चन भी भारी भरकम होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। झटके देंगे, झटके, बिजली का झटका ऐसा है। So derive the formula for calculation of work done when current flows through a resistor. Okay, देख लेते हैं। So current flows through a resistor. Okay, तो current flow मतलब charge flowing. Okay, वहां से शुरू कर लेते हैं। So current flow through a resistor, है ना। So let's start by the concept of work. So what is work? Work is power multiplied by time. So we'll say power multiplied by time, है ना। यहां तक तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, ये दैट इज अ ट्रू फैक्ट, है ना। अब वर्क की बात हो रही है, सो थिंक अबाउट वर्क एनर्जी, हाउ इज इट रिलेटेड टू चार्जेस? डोंट यू थिंक पोटेंशियल बाय डेफिनेशन इज द वर्क पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, है ना। थोड़ा मैं ब्रेन स्टॉर्म वगैरह कर रहा हूं आपके साथ। मैं जैसे आपने पहली बार देखा, आप रट्टे वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर आपने इसको डेरिवेशंस को देख लिया, याद कर लिया, फिर कहे कि फिजिक्स स्टूडेंट्स, फिर तो आप पैरट हो गए ना। नॉट आप, बट एनी स्टूडेंट हु मेमोराइजेस, that's not learning physics, that's memorizing physics. We are learning physics. So learning physics is okay, मेरे पास सिचुएशन है, मैं उसको कैसे अपने आप डिराइव करूं। ऑब्वियसली जब तक एग्जाम में जाओगे आप यूज टू हो जाओगे इसके भी कैसे करना होता है। बट नाउ लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर इट फर्स्ट टाइम, सो you'll say okay, वर्क की बात हो रही है, पावर टाइम्स टाइम है, पोटेंशियल चार्ज से ऐसे रिलेशन है। तो मैं काम करता हूँ, वर्क को ये हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे, ये हटा देता हूं मैं, और मैं कहता हूं वर्क इज चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, है ना। तो मैं कहूंगा अच्छा वर्क की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में मैं ये ले लेता हूं, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, नॉट चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आंसर हो गया, है ना। सो बेसिकली डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन वर्क डन व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर। वो चार्ज की नहीं बात कर रहे, करंट की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है नहीं, ये चार्ज नहीं, अब करंट चाहिए। तो करंट चाहिए तो मतलब क्या? अगर करंट चाहिए मुझे, तो current is charge per unit time. So you can say, okay, if I divide this by time, it becomes current. But ऐसे थोड़ी divide कर दोगे आप. If you divide, you got to multiply also, isn't it? You can divide by any number, but then you got to multiply by the same number so that the original thing does not change. So now this becomes V multiplied by I times T, and done. Done. This is your derivation right here. Okay. नाउ वन इलेक्ट्रिक बल्ब, 5 मार्क क्वेश्चन इसीलिए तो है। अब देखिए, पहले तो आपसे डेरिवेशन कराया गया, जो कि अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी वाले हो तो इस तरह से सोच के करोगे, रट्टे वाले हो तो रट्टा मार के कर दोगे, बट जैसे भी करोगे करोगे, है ना। Now the second part is also there, and that makes it more lengthy. It says one electric bulb is rated 40 watts and 240 volts. So यहाँ पर watt मतलब पावर की बात हो रही है, यहाँ पावर दी है मुझे
और वोल्टेज दिया है, एंड अनदर वन में भी पावर दी है, वोल्टेज दिया है, ठीक है। विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी टाइम्स, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो अब मैं सोचूंगा भाई पावर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, है ना, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अब आप अब फॉर्मूले लिखोगे, है ना, तो अब आप खुद सोचो, पावर इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। सो आप बोलोगे पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, मतलब वर्क ये था बाय टाइम किया तो वी आई आ गया ना, पावर इज वोल्टेज टाइम्स करंट, सो यू कैन से पावर is equal to VI. But then we also know power is VI, but V is equal to IR. है ना, V is equal to IR. तो यहाँ पर V की जगह IR लिख सकता हूँ मैं, है ना, so I can say V is equal to IR. तो यहाँ लिखा IR times I, तो that becomes I square R. और I can say V is equal to IR, so I is equal to V by R. तो ये I हटा दो, यहाँ V by R लिख दो, तो V times V by R is V square by R. So these three formulae that students memorize are all same. And why have I written them? क्योंकि अब मैं चूज करूंगा ना इनमें से कौन सा यूज करूं पावर के लिए। पीवीआर ये लास्ट वाला ले लेता हूं। तो व्हाट इज द लास्ट फॉर्मूला टेलिंग मी, लास्ट फॉर्मूला सेइंग आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, आर इज वी स्क्वायर बाय पी। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस आर वन इज वी स्क्वायर बाय पी, तो वी तो 240 है, 240 का स्क्वायर बाय पावर, पावर इज 40, इसको कैलकुलेशन आप कर लेना, सो दैट विल कम इन ओम्स। नाउ सिमिलरली रेजिस्टेंस 2 इज दूसरे का वोल्टेज उतनी है 240 का स्क्वायर बाय 25, सो यू कैन क्लियरली सी दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, दूसरे का रेजिस्टेंस ज्यादा, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय अ स्मॉलर थिंग, एंड हाउ मेनी टाइम्स यू जस्ट डिवाइड देम, फाइंड द रेशियो, दैट्स ऑल। है ना, दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस कंसेप्चुअली, याद तो फिर तोते भी कर लेते भाई। सो थ्री रेजिस्टर्स of 5 ohms, 10 ohms and 15 ohms are connected in series, and the combination is connected to a battery of 30 volts. Ammeter and voltmeter are connected in the circuit. Draw a circuit diagram to connect all the devices in proper correct order. What is the current flowing and potential difference across the 10 ohms resistance? So पहले तो हम circuit diagram बनाते हैं भाई. These are connected in series, so let's connect them in series. यहाँ पे कर लेते हैं. So this is, let's say, 5 ohms. This is, and then you have 10 ohms. And order doesn't matter, by the way, but just for making it beautiful, I will say, okay, let me put them in ascending order here. So they're connected now, and the combination is connected, but ammeter and voltmeters are also connected. तो ammeter लगा देते हैं, यहाँ पे एक ammeter लगा दिया, है ना, फिर यहाँ पे एक बैटरी है, और क्योंकि स्विच नहीं बोला तो मैं नहीं लगा रहा। नाउ दिस इज वोल्टमीटर, है ना, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लग गया मेरे से, क्यों लगा दिया इसको, तो सिर्फ वायर बनाना है, चलिए गलती हो गई, सुधार ली, है ना। Now voltmeter are connected in the circuit. Ammeter लग गया, voltmeter I'm assuming they want to connect across the battery to make sure whatever it is. Now we are done. Draw a circuit diagram, we have done that. Now what is the current flowing and the potential difference across the 10 ohms resistance? भाई ये series में सब में same current होगा. So we'll start by measuring how much is, not measuring, calculating the total resistance here. So how much is the total resistance? They are in series. So 5 plus 10 is 15. 15 plus 15 is 30 ohms. Now, by the way, I forgot to write there 30 volts. That was a big mistake there. You have to write it. So this is 30 ohms. This is 30 volts. Now battery will say, I don't care आपके पास 5, 10, 15 ये सब है. ये together 30 का है. So battery will say, okay, I know V is equal to IR. So V is 30, बैटरी बोलेगी मेरा 30 वोल्ट्स है, करंट पता नहीं मुझे अभी, रेजिस्टेंस जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो 30 दिख रहा है, सो करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर्स, 1 एम्पियर का करंट है, सो दिस करंट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें होगा, 1 एम्पियर इसमें होगा, 1 एम्पियर इसमें होगा, सो तीनों में 1 एम्पियर होगा. So the question is, what is the current flowing and potential difference across 10 ohms, 1 ampere, है ना, किसी का भी पूछेंगे 1 एम्पियर, बट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर अगर वोल्टमीटर लगाऊं मैं तो उसकी क्या रीडिंग होगी. तो अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखूं 10 ओम्स के, तो 10 ओम्स में रेजिस्टेंस तो 10 है और करंट 1 है. आप सोचिए
V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना है पूछ रहे हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर, I 1 है और रेजिस्टेंस 10 है, तो 10 वोल्ट्स होगा यहाँ पे. This will have a 10 volts of potential difference. Similarly इसका देखूंगा, IR करूंगा तो 1 into 5, 5 volts, sorry, है ना. Again this is 15 volts. So you can clearly see this 30 volts has been divided into 5, 10 and 15. You add them, it becomes 30. So this is how you solve this question. 2012 में 5 नंबर का question आया हुआ था. Beautiful question coming up here. This deserves 5 marks. Obviously, a current of 2 amperes flows through 1 ohm resistance. 1 ohm का जो resistance है यहाँ पर बोला 2 amperes है. Find the power in this 2 ohms. बढ़िया question है. देखने में लगता है कि भाई इतना कुछ कैलकुलेशन है. I would advise you try this question for a minute before we solve this together. क्योंकि देखने में बहुत चैलेंजिंग लग रहा है भाई, ये कैसे, कुछ भी नहीं दिया बैटरी का, हमें तो वोल्टेज भी नहीं दिया. आप ये सोचो ना, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बैटरी का वोल्टेज भी नहीं दिया. कई स्टूडेंट्स ने जब ये क्वेश्चन देखा वो बोलते हैं भाई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल दे आर टेलिंग यू इज 2 एम्पियर्स हियर है और यहाँ पावर पूछ रहे हैं. बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है अगर आप सिस्टमेटिकली करते हो, कंसेप्चुअली करते हो. आपको 1 मिनट देता हूँ सोचने के लिए. ठीक है, देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. हमको क्या दिया, हमको दिया यहाँ पर 2 एम्पियर्स का करंट है ना. 2, मैं थोड़ा डार्कर कलर यहाँ यूज कर पाऊंगा. सो दिस इज 2 एम्पियर्स. बट थिंक अबाउट इट, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है ना. पूरे इस ब्रांच में ही 2 है, पूरे ब्रांच में 2 है. तो इधर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. अब आप ध्यान से देखोगे, इसमें सिमेट्री देखो. ये 1 प्लस 5 6 ओम्स है, ये 2 प्लस 4 6 ओम्स है. तो डोंट यू थिंक जितना करंट यहां जा रहा होगा 2 एम्पियर वहां भी 2 जा रहा होगा. क्योंकि आप सोचो ना, यहाँ पे गाड़ियां आई, उन्होंने देखा जितने गड्ढे इधर है उतने इधर है, तो बाय प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड बाय बाय, है ना, रैंडमनेस नहीं बोलूंगा इसको, थोड़ा सिस्टमेटिक ही होगा कि डिसीजन मेकिंग विल बी दैट आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी. बीच का भी मैं, मेरे को मतलब भी नहीं है. तो उस लॉजिक से मुझे पता है कि ऊपर 2 एम्पियर्स है. पर चलिए, आप नहीं मानते या दूसरा मेथड देखना है तो दूसरा मेथड देखते हैं. तो इफ दिस इज 2 एम्पियर्स, अब ये पूरे में 2 एम्पियर्स है, पूरा 6 ओम्स है. सो दिस ब्रांच 6 ओम्स हैविंग ए 2 एम्पियर्स ऑफ करंट. 6 ohms, 2 amperes of current, V is equal to IR. तो आप खुद सोचो कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों ब्लू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स होगा. कैसे, दोबारा से, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो कितना है, 2 एम्पियर्स. इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 6 ohms. V is equal to IR, V is equal to 2 times 6, 12 वोल्ट्स. अब अगर ये ब्रांच 12 वोल्ट है तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है. क्योंकि आप खुद सोचो ना कि भाई पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है. तो मतलब ये जो दो रेड पॉइंट्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये दो रेड पॉइंट्स के बीच में भी 12 वोल्ट्स है. यहां 12 है, तो इनफैक्ट इनके बीच में भी 12 है, इनके भी. तो मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है, तो 12 है. इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट्स है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है. So 12 divided by 6 is 2 amperes. So clearly I know this is 2 amperes of current flowing here. इसमें भी 2, इसमें भी 2. अब बोल रहे इसमें कितनी पावर है. सो पावर के तीन फॉर्मूला हमने देखे थे जो बिहाइंड द सीन्स दे आर ऑल सेम. वन इज वी आई, वन इज आई स्क्वायर आर एंड वन इज वी स्क्वायर बाय आर. तो अगर 2 ओम के परस्पेक्टिव में देखोगे, देखो पूरा 12 वोल्ट था. ये नहीं कि आप 12 यूज कर लो, वो 12 इन दोनों में डिवाइड हुआ, कुछ इसने रखा कुछ इसने रखा. पर इसके पर्सपेक्टिव में मुझे क्या पता है, मुझे करंट पता है 2 एम्पियर, इसको भी तो 2 एम्पियर और 2 ओम्स. तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठा लेता हूं. तो मैं कहूंगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज 2, एंड आई विल से पावर इज 8. नाउ वी आर नॉट डन. रिमेंबर वॉट, बड़ा डब्ल्यू लिखिए या फिर वॉट लिख रहे हो पूरा तो छोटा लिख रही है. एक और अमेजिंग क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. So if the emitter in the given circuit reads 2 amperes, wow. So बोला है कि ये 2 amperes है
ये इजी क्वेश्चन है. दिस इज नॉट ए 5 मार्क क्वेश्चन बाय द वे, लेट मी क्लैरिफाई. दिस वाज ए पार्ट ऑफ 5 मार्क क्वेश्चन. जो 5 मार्क के क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं ना, बाकी का इजी था, इसलिए मैं उसको नहीं यहाँ पे लाया. मेरे को जो मेन उसमें से अच्छा लगा वो लेकर आया हूँ. सो डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज वर्थ 5 मार्क्स. इट इज अ पार्ट ऑफ ए 5 मार्क क्वेश्चन बाय द वे. सो लिखा है ये 2 एम्पियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर. तो अगर ये 2 एम्पियर है तो शुरुआत कहां से करेंगे? हम बोलेंगे भाई बैटरी को लग रहा है कि मेरे को 2 एम्पियर देना है, तो बैटरी 2 एम्पियर कब देगी? बैटरी ने कुछ ये वाला कैलकुलेशन किया होगा ना. बैटरी ने बोला होगा V इज इक्वल टू आई आर. मेरे को पता है मैं 6 वोल्ट्स की हूं, और अगर उसको 2 एम्पियर का करंट देना था तो रेजिस्टेंस कितना था, है ना? V इज इक्वल टू आई आर, है ना? सो रेजिस्टेंस वाज 3 एम्पियर्स. तो बैटरी को अगर 3 एम्पियर दिख रहा होगा ये सब, तभी बैटरी 2 एम्पियर दे रही होगी, है ना? ये पूरा 3 दिख रहा होगा जब. अब इस पूरे में ये दोनों पैरेलल में है. 6 और 3 का पैरेलल आप करोगे, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6. सो दिस थिंग comes out to be equivalent to 2 ohms. This encircled thing is 2 ohms. पर बैटरी को ये पूरा 3 ohms दिखा था, और ये 2 है. पूरा 3 दिखना था, तो क्लियरली दिस वन इज 1 ohm. दिस इज द लॉजिकल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार खो जाते हैं. जो याद करते हैं ना वो खो जाते हैं. वो सब कुछ कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे. वो यहाँ का करंट पता करेंगे, बोलेंगे 2 एम्पियर है, यहाँ का करंट देखूं, यहाँ का देखूं, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल. नहीं, कुछ नहीं देखना आपने. आपने लॉजिकली करना है, और जितना इजी तरीके से करोगे उतने आपकी मिस्टेक्स भी कम होगी, एंड देन एग्जामिनर को भी ठीक से समझ में आएगा भाई फुल मार्क्स देने हैं इसको. चलिए, सो तालियां तो बनती हैं क्योंकि यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस. सो कंप्लीटेड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग टुडे विदाउट रट्टा. है ना? आपने मेमोराइज नहीं किया. एंड बाय द वे, दिस ताली इज नॉट जस्ट फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, दिस इज फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ सीबीएसई 10th फिजिक्स. मैं एक बार और उस बात को जोर जोर से बोलूंगा जिससे यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट. टुडे यू हैव मास्टर्ड 10th ग्रेड सीबीएसई का फिजिक्स का पोर्शन. पैरेलली मैथ्स की सीरीज चल रही है, वो भी अटेंड करिए, और जल्दी मैथ्स में भी आप मास्टर हो जाएंगे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है ना? सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल क्विकली टू कीप अपडेटेड ऑन अदर सब्जेक्ट्स व्हेन वी ब्रिंग देम आल्सो. नाउ ये चैप्टर तो हो गया, अब क्या करना है? सी द होल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस एक्सेलरेटेड मैथ सीरीज इज so that you can quickly finish the syllabus and go to the next level where you're preparing for one of these Olympiads. So start preparing. अपने आप कर सकते हो, YouTube में बहुत फ्री कंटेंट है, उससे कर सकते हो. If you want, we offer the batches also, paid batches. That's your choice. I will keep bringing free classes of NSEP also. You know, but like Dhruv, you can elevate yourself to the next level, where Dhruv got gold medal for India in 2023, and Aditi Avnish were part of the silver medal winning team of chemistry. So Dhruv got in physics Olympiad. He was part of the team here. We are proud for all the team members here, not just Dhruv. I'm personally proud of all the team members. बट ध्रुव क्योंकि हमारा अपना स्टूडेंट है, वेदांतु में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम उसकी फोटो अलग से दिखाते हैं. सेम गोज विद अदिति एंड अवनीश. दे वर पार्ट ऑफ द टीम, है ना, which got silver medal, and equally proud for all of the team members. It's a teamwork, it's team effort. But obviously, because they are our students, we show their picture. Now, these are the courses that we are running for the different Olympiads. And if you want, you can join some of them or one of them. Personally, I take NSCP because I'm a physics teacher. So you can join the Physics Olympiad batch if you want. Module 2 अब खत्म होने वाला है. अब मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे. मॉड्यूल 2 18 मार्च को स्टार्ट किया था. 2000 फीस विद 10% डिस्काउंट. एंड इफ यू वांट द रिकॉर्डिंग ऑफ मॉड्यूल 1, it is for 500 more, again 10% discount there. So 5 modules. Now sometimes students ask me, and many times they ask me, sir मॉड्यूल 1 नहीं करा तो 2 ज्वाइन करके फायदा है, 2 भी नहीं करा 3. देखिए, आप कहीं से भी ज्वाइन करो, फायदा ही फायदा है. बट एक कंडीशन है कि यू हैव टू कमिट योर सेल्फ टू हार्ड वर्क. अगर आप सोचो भाई 1900 फीस है, 1999 जो भी है, एंड इफ आई पे द फीस, भाई गोल्ड मेडल ले आऊंगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा, है ना? इट्स ऑल योर हार्ड वर्क. वी कैन गाइड यू, वी कैन हेल्प यू,
Personally as a teacher I'll put all my efforts, but आप कहीं भी अगर फर्स्ट उसमें भी आते हो, चाहे इसमें आते हो, उसमें आते हो, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी फायदा है। तो आप किसी भी मॉड्यूल में एंटर कर लो, दैट्स ओके, यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू सी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रीवियस वंस, है ना। और मे बी यू ऑलरेडी डन इट, हो सकता है आपने ये टॉपिक्स करे होंगे, उतने डेप्थ में नहीं करोगे बट बेसिक्स तो आते हैं। तो अगर बेसिक्स आते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। वैसे भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स विच इज मॉड्यूल 3, that's completely independent of all this. So that's from 11th grade. So these are 11th grade topics. These are 12th grade topics. So you can enter in any module here. So module 3 is starting in May, mid of May. Chaliye. So join this Telegram channel to keep yourself updated. And very, very important here, which I say every time, कि भाई अगर आपको मेडल लाना है, आपको सिलेक्शन लाना है, आपको अच्छी रैंक लानी है, आपको मेहनत तो करनी है, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप अप द हाई जोश। कीप अप द हाई जोश। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट एवर चेंजेस यू नीड इन दीज क्लासेस। हम लोग आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे, है ना। पर्सनली आई विल ब्रिंग लॉट ऑफ मैथ क्लासेस ऑल्सो। फिजिक्स की तो लाऊंगा ही लाऊंगा। And after this accelerated physics is over, parallelly NSCP का boot camp start किया है. So from tomorrow or day after, we'll be getting more and more classes into that boot camp also. Those are higher level studies and accelerated math भी parallelly मैं ले रहा हूँ. So join those also. So keep up the high Josh बच्चों. See you soon. Bye bye. Take care.